Hello, everyone. uh, Nice to see everyone now once again. Many known faces. Welcome once again to our petition groups webinar. These are empowering, citizen empowering webinars we regularly have by legal experts and veteran activists for everyone's knowledge and to make them better activists, to make them fight for better governance in future. So today, as you all know, we have Mr. Kamlakar Shenoy with us, who will be speaking on those three topics which has been given in our invite. That is on how public servants perpetrate the scams in course of their duties. Okay, the three main topics in that are housing and FSI scam, unauthorized constructions and encroachments, and the police irregularities, how police evade doing their duties to support the illegality and the lawbreakers. So these are the three topics main which we'll be covering this time, and request everyone to put on the video, please. We don't want blank pages over there. We may have to remove you all if you all insist on removing remaining anonymous, and your names also. Please put your real names over there in case we yet find that some names are anonymous or those default names, then we'll have to remove them. And whenever you all speak, kindly keep paper and pen ready for your queries, because Mr. Kamlakar, when he speaks, you will not be able to ask questions at that point of time, but later when we have question and answer session, at that time you can. So whatever comes to your mind, queries that comes to your mind, please put it on paper and express it later in a precise manner. And so now we go on to our speaker, Mr. Kamlakar Shenoy, who, of course, everyone, most of you all will not require any introduction to. Okay, he's a veteran activist. Since years, he has been, fighting for better governance, and he's an anti-corruption crusader for better civic conditions, for our electricity bills, and there are many things. A housing scam, MADA, thousands of crores of rupees scam, which he has unearthed, and he has gone to court on that. And the irregularities done by our, especially those anti-corruption officers and economic offences wing officers who have, there are many honest officers. In his own words, there are many honest officers, but there are some dishonest ones who need to be, who need to mend their ways and perform their duties as mandated by law. So our all efforts are there, and Mr. Kamlakar Shenoy has been a torchbearer for us all activists. He has he has been an inspiration, and we look at him for guidance, for support in course of time, in the past and in future too. So I'll hand over the mic to Mr. Kamlakar Shenoy, who will take you on further now. Thank you so much. नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय आपके सामने फिर से हाजिर हूं. Let me tell you, I'll be speaking 3 sentences in English. Let me tell you that I am not an expert. मैं expert नहीं हूं. मैं मेरा जो तजुर्बा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. इसलिए मैं आप मुझे कोई वकील या कोई ऐसे बड़े जाने माने मालूमात है ऐसा आदमी मत सोचिए. मैं आप जैसा ही हूं और काफी मार खा चुका और वो उसके वजह से मैं जो सीखा मैं आपको शेयर कर. Later, my submissions are all with due respect and all humility. I have no intentions to cause hurt, injury to any institution or any individual. The only interest is public interest and the national interest. In the event, if my submissions are incorrect, I request you to educate me with proper laws and relevant materials so that I can educate myself. And ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ है. इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऑफिसर्स करप्ट हैं. बहुत से ऑफिसर्स बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मगर जो करप्ट है वो इतने पावरफुल है कि ये ईमानदार ऑफिसर्स को काम करने नहीं देते हैं. और इसीलिए हम इस वेबिनार के जरिए से हम कोशिश करेंगे कि हम ऑनेस्ट ऑफिसर्स को सपोर्ट करें और उनको इतना सपोर्ट करें कि जो करप्ट है उसको डर लगे कि भाई
ये अच्छे ऑफिसर्स के पीछे पूरी सिटीजन्स की फौज है, हम ज्यादा ऐसे करप्शन के पीछे नहीं लग सकते। तो हमारा मकसद है टू सपोर्ट द ऑनेस्ट ऑफिसर्स एंड टू क्रिएट फियर। हम करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ उनके दिल में हम डर पैदा करना चाहते हैं कि आप भी संभालो, जैसे आप दूसरे को प्रोसिक्यूट करते हैं वैसे हम एज ए सिटीजन आपको प्रोसिक्यूट करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। एक मेरे हर लेटर पे एक वर्ड, एक सेंटेंस होता है कि द वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड पर्सन्स बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पर्सन्स। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे लोग चुप बैठने की वजह से आज ये बुरे लोगों की ताकत बढ़ गई है। अगर हम 70-80% जो अच्छे हैं वो साथ में आएंगे तो 5-10% जो चोर है उचक्के, उनकी हमारे सामने खड़ा रहने की ताकत भी नहीं होगी। और इस वेबिनार और इस ग्रुप पिटीशन के जरिए हम ये जो 70-80% जो अच्छे लोग हैं उनको हम साथ में लाके हम जो 10% जो बुरे लोग हैं या करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की हम कोशिश करें। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं कि हमारा जो मैक्सिमम इलीगैलिटीज या कानून की जो उल्लंघन करने वाले कौन है? हमारे यहाँ उल्लंघन करने वाले हमारी खुद की गवर्नमेंट है, हमारे खुद के पॉलिटिशियंस है और हमारे खुद के पब्लिक अथॉरिटीज सबसे ज्यादा कानून के उल्लंघन करने वालों में से है। अभी फिलहाल आपको देखिए, आप हमारे पॉलिटिशियंस हर इलेक्शन में 40 से 50% जो है वो क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। यही लोग हैं जो कानून नहीं मानते हैं और कानून को गलत करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो कैसे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो टॉपिक उठाए और उस पर काम किए। हम अकेले या हमारे ग्रुप पिटीशन में जो 5 या 10 लोग हैं वो पूरे बंबई को पूरे नहीं पढ़ सकते हैं, मगर हमने जो यहाँ पॉइंट्स उठाए हुए हैं उसमें से अगर आप में से 2-5 लोगों ने साथ में आके अगर एक मुद्दे पे काम करने की कोशिश की तो हम जरूर बंबई को अच्छा बना सकते हैं। और मेरी आपको सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उसमें जो मुद्दे उठाता हूं वो मुद्दे को नोट कीजिए और वो नोट किए हुए मुद्दे में आपको जो जचता है या आपका जिस पे कॉन्फिडेंस है या आप जिस पे स्टडी कर रहे हो वो मुद्दे को उठाइए और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। अभी अब मिसाल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँ, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टेट डिपार्टमेंट है, अभी उसके खिलाफ मैंने रिट दाखिल की है 1918 ऑफ 2021 अभी दाखिल की है। अभी कोविड की वजह से उसको हमको डेट्स नहीं मिल रहा है, मगर ये डिपार्टमेंट ने लाखों करोड़ का फ्रॉड किया है और इसके मैं आज गया 1.5 साल से कंप्लेंट्स फाइल कर रहा हूं, मगर म्युनिसिपल कमिश्नर है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसको कुछ भी एक्शन नहीं लेते। ऐसा लगता है कि ये जो बड़े ऑफिसर्स है ये जो फ्रॉड करने वाले उनसे डरते हैं, तो इसीलिए उनको हमको एक कानूनी तौर से उनको फोर्स करना है कि उन पे एक्शन ले। अब जो इन लोग एफआईआर रजिस्टर करते हैं कोई फ्रॉड के खिलाफ तो उसकी रिकवरी नहीं होती है। तो अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो 2G स्कैम हो गया 1,76,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया है, एफआईआर रजिस्टर हो गया, मगर जो कानूनी तौर से जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था वो निर्दोष हो गए, तो हमारे 1.76 लाख करोड़ कहां गए? तो ये हमको बेवकूफ बनाने का एक जरिया है क्या? ऐसे सवाल हमारा दिल में आ जाता है। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट किसी पे एफआईआर रजिस्टर करती है तो हमको उनको फोर्स करना है कि उसी के साथ उनको रिकवरी और अटैचमेंट के प्रोसीडिंग्स भी करना चाहिए, ताकि खाली उनको प्रोसिक्यूशन नहीं हुए। क्योंकि मुश्किल हमारी दर्द बनी कहानी यह है कि हमारा प्रोसिक्यूशन जो है बहुत वीक है। क्यों वीक है मैं इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। और 90 हमारी कन्विक्शन रेट और 7 to 8% या 10% है, वो भी उसमें से ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। तो इसलिए हमको सिविल प्रोसीडिंग्स का अटैचमेंट पे जोर देना बहुत जरूरी है। हमारी जो गवर्नमेंट है या ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रास्ते पे खाना नहीं पकाना चाहिए, वो तो पकाने के लिए जरूरी करते हैं। हम ऑब्जेक्शन देने के बाद हमारे पे कानूनी कार्रवाई होती है, मगर उन पे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट ने पुलिस के जो लॉ एंड ऑर्डर है और इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग करना चाहिए, उसको ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, मगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे पॉलिटिशियन नहीं करना चाहते हैं। अभी आपको और दुख भरी कहानी बताता हूं कि हमारे मंत्रालय में बेसमेंट है, जबकि बेसमेंट में कोई भी ऑफिस नहीं हो सकता है।
हमारे मंत्रालय के 7वां फ्लोर इलीगल है, उसके प्लान्स नहीं है, मैंने आरटीआई डालने के बाद मुझे अभी तक नहीं मिला है, ये बात है। अभी मंत्रालय के जो अभी जो आग लगी हुई बिल्डिंग है बीच वाली, अगर उसके अंदर जाएंगे तो आपको बाहर कैसा निकलने का पता नहीं चलेगा, और उसके पैसेज इतने छोटे कि उसको फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट है क्या नहीं, ये क्वेश्चन मेरे दिल में आ जाता है। तो इस तरह से हमारे ही पॉलिटिशियंस और हमारे ही जो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हमको जो हम पे जरूरी फोर्स करते हैं कि वी शुड एम्बाइब विद द लॉ, और यही आदमी है कि सबसे ज्यादा कानून तोड़ते हैं। हमारा जीएसटी भवन पे जो 11वां माला है वो इलीगल है, अभी हमने बोलने के बाद वो कहते हैं कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हम उसको भी निकाल रहे हैं, वो ये नहीं करते कि इलीगल है। इस तरह से हमारे गवर्नमेंट के जो कुछ लोग हैं, वो हमारे अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट पे हावी हो चुके हैं और गलत काम करते हैं। आज की बात है कि कि मेरे पास एक वो दुकानदार आए, बोले वो लाइसेंस फी भरने गए, क्योंकि कोविड में उन्होंने नहीं भरा था, तो वो कोविड के साल का और इस साल का वो लाइसेंस फी भरने गए। तो वो कहते हैं कि लाइसेंस फी भरने के टाइम पे उनको 100% पेनल्टी लगेगी। ये तो हमारे पर जुल्म हो रहा है। एक तरफ से आप जो है वो लाखों करोड़ का फ्रॉड है, उसकी वसूली नहीं कर रहे हैं, आप बिल्डर्स को 5,000 करोड़ की सहूलियत दे रहे हैं, आप अमीरों को जो है वो लोन पे स्ट्रक्चरल चेंजेस करके उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, और जो आम आदमी है जिसका दुकान बंद है, जिसको दुकान कैसे खोलना वो नहीं जानता है, उसको कोई सहूलत तो नहीं देते हो और उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो। इसलिए हम सभी को ये जो ड्रैकोनियन कानून है कि 100% पेनल्टी फॉर 1 ईयर, ये कौन से तरीके में बैठता है? ये तो टोटली इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये हमको उठाना है। तो आप में से कोई भी एक आदमी ये मुद्दा लिख लीजिए और उसको फॉलो अप कीजिए और हमको हेल्प कीजिए, ये मेरा आपको सबको रिक्वेस्ट है। हमारा देश जो आज है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट की वजह से बहुत डर में है, मगर मेरा ये मानना है कि जब वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट हम पे अटैक करता है तो हम सब एक साथ आते हैं और उनको उनकी धज्जियां उड़ाते हैं और हम जीत जाते हैं। मगर हमको आज सबसे डर जो है, हमारे ही अंदर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ही अंदर के जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ही अंदर के जो वेल वेल कनेक्टेड पैसे वाले हैं, वो हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट से ज्यादा धोखेदायक है, और हमको इनके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए तकलीफ हो रही है कि हम उनके सामने साथ में नहीं आ सकते हैं। जब क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट के साथ हम लड़ते हैं तो पूरी मशीनरी क्रॉस बॉर्डर के खिलाफ होती है, मगर जब हम ये इकोनॉमिक टेररिस्ट, जो ये करप्ट लोग हैं, ये इकोनॉमिक टेररिस्ट है, दे आर एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ऐसे कई कोर्टों ने बताया है, मगर उनपे हमारे ही ब्यूरोक्रेट्स, हमारे ही पॉलिटिशियंस उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनसे हमको सबसे ज्यादा धोखा है, ये आप मान लीजिए। और हमारी लड़ाई जो है वो ये इकोनॉमिक टेररिस्ट जो है, जो अच्छे लोगों को दबाता है, जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को दबाता है, और उन लोग को अच्छी तरह से काम करके बेसिक एम्यूनिटीज जो है वो हम पब्लिक को नहीं दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूं कि जब इलेक्शन आती है तो हम हमारे हर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि भाई वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, वी आर द मोस्ट हॉनेस्ट, हम तो हमारे में जो इतनी जवाबदारी से काम करने की ताकत है वैसे दूसरे कोई भी पार्टी में नहीं, इसलिए हमको आप वोटिंग करो। अगर आप में इतनी इंटेलिजेंस है, कॉम्पिटेंसी है, तो आप लोग एसआरए और म्हाडा की जो काम करने का तरीका है उसको डेवलपर के हाथ में क्यों दिया जाता है? आपको बताना चाहता हूं कि म्हाडा जो पैदा हुई है वो बिल्डिंग बांध के उसको लोगों तक पहुंचाने का और उसका प्रॉफिट से वापस उसको पब्लिक को उसका फायदा हुए उस हिसाब से काम करने के लिए पैदा हुई। पर आज हमारी म्हाडा, हमारी एसआरए, ये सिर्फ एनओसी देने के लायक हो थोड़े में। आप ये सोचिए कि ब्रोकर बोलो या दलाल बोलो, ऐसे काम कर रही है। आप सोचिए कि 1 फुट बांधने के लिए अगर 3 या 4 फुट उनको एफएसआई मिलता है बिल्डर्स को, और उसके ऊपर फंजिबल एफएसआई मिलता है, तो यही एफएसआई अगर म्हाडा को मिले या एसआरए को मिले
तो हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना हो जाएगा। हमारे पास अगर स्टॉक बढ़ेगा तो अपने आप भाव कम हो जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे आपको दिखाता हूं कि हमारे बीएमसी स्टेट डिपार्टमेंट के पास 123 प्लॉट्स जो हाउसिंग फॉर डिजर्व्स के हैं, हमने आरटीआई डाला, उनकी स्टेटस पूछी तो बोले इट इज नॉट अपडेटेड। इस तरह से हमको बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे ही म्युनिसिपालिटी, हमारे ही वर्कर्स, पब्लिक सर्वेंट जो हमारे टैक्स पर से पगार लेते हैं, उनकी जिंदगी संवारते हैं और हमको लूटने के लिए इन लोग निकले हैं। और ऐसे गद्दार लोगों से या ऐसे टेररिस्ट लोगों से, इकोनॉमिक टेररिस्ट लोगों से हमको लड़ना है। वैसे स्टेट डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छे लोग हैं, मगर ये जो पैसे लूटने वाले लोग हैं, इनकी ताकत बहुत बड़ी है। यहां तक कि मेरी कंप्लेंट होने के बावजूद हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, हमारे सीएम अभी तक उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, हमारे एडिशनल कमिश्नर्स हमको मीटिंग नहीं दे पाते हैं। इससे बड़ा और इकोनॉमिक टेररिज्म क्या हो सकता है। और इसके लिए हमको लड़ना है कि भाई आप हमारे प्लॉट्स को लूट रहे हो, आप हमारे प्लॉट्स के अकाउंट्स नहीं दिखा रहे हो, आप उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, और फिर भी आप हम पे दादागिरी कर रहे हो। आपको दिखाता हूं कि बीएमसी के पास 4177 प्लॉट्स है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद में उनके पास और 650 एक्वायर्ड प्लॉट्स है। बीआईटी के 77 प्लॉट्स है, बीआईटी चार्ल्स के 22 प्लॉट्स है। आप सोचिए कि इसके एफएसआई, ये बिल्डर्स को 4 एफएसआई या और उसके फंजेबल वर्क के 7-8 एफएसआई जो दे रहे हैं, उसका फायदा अगर बीएमसी, भाड़ा और एसआरए को खुद को मिले और सप्लाई बढ़े, तो ये प्राइसेस जो घर के हैं वो क्यों ज्यादा बनेंगे। मगर ये कॉन्स्पिरेसी है हमारे पॉलिटिशियंस की कि हमको अफोर्डेबल हाउसेस नहीं मिलना चाहिए, हमको एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, और इस तरह से ये अच्छे कानून बनाने के बहाने से ऐसे कानून बना रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारे हाउसिंग फॉर डिजर्व्स के प्लॉट्स है, उसके पीएपी के भी सही हिसाब से इन्होंने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए। इलीगल कंस्ट्रक्शंस या एनक्रोचमेंट को बढ़ाने के लिए एमआरटीपी में मेरे अंदाज से 2500 रुपीज पर डे का पेनल्टी था, जो उन्होंने निकाल के अब 25,000 रुपए मैक्सिमम पेनल्टी किया। इसका मतलब आप चोरी करो, इलीगल घुसो, और जब केस आ जाएगी 5 साल के बाद, उसके बाद में आपको सिर्फ 25,000 फायदा उनका फाइन होगा। इसका मतलब आप करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी का धज्जी उड़ाओ और 25,000 रुपए फाइन भरो और निकल जाओ। इस तरह से कानून की बदलाव जो किए हैं इन्होंने, ये हमारे लिए इकोनॉमिक टेररिज्म जैसी ही है। मगर हमको ये बहाना क्या दिखाते हैं कि हम गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने एसीनो बिल्डर ने उनको फंसाया, और इसीलिए उनको बचाने के लिए हमने ये कानून लाया है। मेरा ये मानना है कि अगर वो बिल्डर ने फंसाया है, और हमारे आपने जो गलत कानून बनाया है इलेक्ट्रिसिटी देने का और वाटर कनेक्शंस देने का, ये अगर नहीं होता तो बिल्डिंग में घुसने का सवाल ही नहीं आता। और अगर बिल्डिंग में घुसने का सवाल नहीं आता तो हर पब्लिक वो बिल्डर के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई करते थे। मगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे लड़ने का सहारा को काट दिया है, और ये बताया कि विदाउट ओसी और विदाउट गलत जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को आप फिक्र मत कीजिए, हम हर 85 से 95, 95 टू 2000, 2000 टू 2015 हम हर चोरी को हम उसको रेगुलराइज करते रहेंगे। और जैसे हमारा हाई कोर्ट ने बताया कि आपका बाप का माल है क्या, कि आप बटर रहे हो अपने लोकल प्रॉपर्टी, और ये सिर्फ बंबई में हो रहा है। अभी तो फिलहाल बोलते हैं कि 2015 या 2020 तक के भी इन लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करेंगे। इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा गलत मुद्दा है वो है 33(7) और 33(10). ये डीसीआर जो है, हाई कोर्ट ने भी खुद बताया, इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज अ फ्रॉड, ये ऐसे हाई कोर्ट ने बताया। अभी आप ये सोचिए कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हमारी अच्छे देने की दुआएं करते हैं और हमको बोलते हैं हम आपके लिए जिंदा है, ये ऐसे गद्दारी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। अभी ये 33(7) और 33(10) को हमको स्क्रैप करने के लिए एक मूवमेंट करना है।
अभी इसमें से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इसमें एडवोकेट्स है, हमारे इसमें जानकार एक्टिविस्ट है, जो बीएमसी के काफी मुद्दे जानते हैं, वो प्लीज ये 33(7) और 33(10) को चैलेंज कैसा करने का, और वो अभी जो हाईकोर्ट ने भी बताया कि आप प्रॉपर्टी बाप का माल जैसा नहीं दे सकते हैं, तो इसका हमको फायदा लेके पब्लिक इंटरेस्ट में हमको ये कानून को बंद करना है। इसलिए बंद करना है क्योंकि बंबई के बाहर ये नहीं है, पूरे इंडिया में ये नहीं है। बंबई के बाहर जो रहने वाले हैं वो हमसे बहुत ही गरीब है, इतने गरीब है कि कभी कभी उनको खाना भी नहीं मिलता, फिर भी वो अपने घर बनाते हैं। तो ये बंबई को फुकट में घर देने का बहाने से हमको लूट रहे हैं। आज हमारे बंबई में जो रहते हैं उनके घर में टीवी है, फ्रिज है, बाइक है, कार है, तो क्या अपने घर को, बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए 2-5 लाख रुपया नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं, मगर ये वोट के लिए हमको बेवकूफ बना रहे हैं, और बेवकूफ बना के हमको लूट रहे हैं कि हमको देते करके दिखा के हमारे कपड़े भी उतार रहे हैं। तो इसके लिए हमको 33(7) और 33(10) के खिलाफ लड़ना है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आप 4 माले की बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप 20 माले और 25 माले की परमिशन दे रहे हैं। जब ये परमिशन आप दे रहे हो, तभी आपने कभी सोचा है कि 50 माले की बिल्डिंग में 200 फ्लैट्स रहेंगे, तो 200 फ्लैट्स के 4 गाड़ियां रहेंगे, 4 मोटर बाइक रहेंगे। वहां रास्ता अगर आपने नहीं बढ़ाया तो नीचे उतर के गाड़ी कैसे चलाएंगे? आप खाली एफएसआई पे एफएसआई बढ़ाते जा रहे हो, मगर एम्यूनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते नहीं जा रहे हो। तो ये इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? इकोनॉमिक टेररिज्म क्या होता है कि 5% लोग 95% लोगों को भिखारी बनाएंगे, उनके लाइफ कंडीशंस को इतने गंदी बनाएंगे कि उनके पास ना सीखने की ताकत रहेगी, ना लड़ने की ताकत रहेगी, ना खाने की ताकत रहेगी, और ये 95% इनके गुलाम बन के रहेंगे। यानी पहले के राजा महाराजा ने जो जैसे करते थे वैसे हम इनके गुलाम बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा। 250 माले की बिल्डिंग अगर बांधेंगे, अगर स्कूल नहीं बढ़ेंगे, कॉलेजेस नहीं बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बढ़ेंगे, तो सिर्फ अमीर आदमी डोनेशंस पे पैसा एडमिशन लेगा, गरीब आदमी कहां जाएगा? तो गरीब आदमी जिंदगी भर अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, और उसको इनके पास खाली नौकरी करना यानी कबरसी धोना, उनके कपड़े धोना, उनके गाड़ी चलाना, उसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इसके लिए मैं इनको इकोनॉमिक टेररिस्ट करके बोलता हूं। अभी आप ये सोचिए कि 25 साल के बाद में जब ये 50 माले की बिल्डिंग को अगर रिपेयर करना है, तो क्या आप 200 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन दोगे? तब क्या होगा? और आज आपने देखा है कि जो भी रिहाब के सब एसआरए के बिल्डिंग्स होते हैं या माड़े के बिल्डिंग्स होते हैं, वो इतने सब स्टैंडर्ड होते हैं कि वो बाहर बिल्डर बाहर निकलते निकलते वहां लीकेज भी चालू होता है, और हमारी माड़ा और हमारे एसआरए चुप बैठती है। तो ये इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं तो क्या है? हम ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए मैं आपके सामने आज आया हूं। अभी इन्होंने हमारा एक ये है कि जो आप एफएसआई बढ़ाते हो, तो एफएसआई आप बढ़ाने के टाइम पे आपने अगर 10 एफएसआई बढ़ाया, तो इसमें एक कानून बनना चाहिए कि इसमें 2 एफएसआई स्कूल के लिए होगा, 2 एफएसआई कॉलेज के लिए होगा, 2 एफएसआई हॉस्पिटल्स के लिए होगा, 2 एफएसआई इसके लिए होगा। ऐसा उसमें पहले से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप जब 10 लाख या 5 लाख एफएसआई आप बांटने वाले हो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो आपका फर्ज होता है कि उसके रोड के विड्थ कितने हैं उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें पार्किंग की पोजीशन क्या है उसको बढ़ाना चाहिए, उसमें कॉलेजेस कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स कितने हैं। ये कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब क्या कि अगले जनरेशन को जिसके पास पैसा नहीं है उसको स्कूल में एडमिशन नहीं, उसको आज स्कूल का फीस कितना है? 60,000 रुपया, 80,000 रुपया। क्यों? आप ये फ्री देने के बदले आप फ्री एजुकेशन क्यों नहीं देते हो? आप फ्री मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं देते हो? क्योंकि ये दो देंगे तो हमारी अक्ल बढ़ेगी, हमारी शक्ल बढ़ेगी, और हम इन लोगों को पूछेंगे कि भाई आपने ये क्यों किया, हम सवाल करेंगे। इसीलिए ये हमको एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, ये हमको हेल्थ नहीं देना चाहते हैं, और ये हमको फुकट खाने का आदत करके हमारे काम करने की और लड़ने की शक्ति को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसके खिलाफ हमको आवाज उठाना है कि आपको फ्री में जितना दोगे, आपको आज अच्छा लगता है कि आपको फ्री में मिलता है, मगर एक याद रखिए जो फ्री में खाता है वो जिंदगी भर भिखारी होता है।
उसको फ्री में खाने की आदत होती है, लड़ने की आदत मर जाती है उसकी। और इसलिए आप फ्री के पीछे मत जाइए, आपको रिजनेबल कॉस्ट दे के लेने की आदत रखिए। और हम गवर्नमेंट को भी ये करेंगे कि भाई हमको फ्री नहीं चाहिए, आपका जो रिजनेबल कॉस्ट है वो हमसे लीजिए। ये हमको लड़ना है। फिर अभी आपको दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड दिखाता हूँ। ये 10 लाख करोड़ स्टेट का जो मैंने आपको फ्रॉड बताया, 10 के ज्यादा भी हो सकता है, कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन के प्लॉट्स होते हैं। ये रिजर्वेशन के प्लॉट हमारे जो पॉलिटिशियंस है सामने बैठ के, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठ के उनसे ये करवाते हैं, जो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं, आज क्रॉफर्ड मार्केट के बाजू में एक बड़ा शेड बना है, जो रास्ते पे बना है, जो इलीगल है। उसके पास फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट नहीं है। और ये मैंने एमसी म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे असलम शेख जो क्या गार्डियन मिनिस्टर है हमारे, उनको भी खत लिखा है, मगर एक भी आदमी ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, ना मुझे मीटिंग दी है। अब अगर इस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे, इस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस काम करने वाले हैं, तो ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। ये क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर जो मार्केट है, उसमें अंदर सब लकड़ा है, प्लास्टिक है, फाइबर है, अंगार लगी तो सब 2 मिनट में मरने वाले हैं। और वहां रास्ते पे फायर ब्रिगेड को आने के लिए रास्ता नहीं। तो मेरा बोलने का यह कि इनके पास विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और लोगों की जिंदगी को कैसे एंडेंजर करना और हमारा एफएसआई बढ़ाना, इसके सिवाय इनके पास और कुछ भी नहीं है। तो जहां तक आपके पास अगर कोई ऐसे प्लॉट्स आए जो टाउन प्लानिंग में या डीपी में रिजर्व है, तो आपको उसके अंदर जाके ये देखना है कि वो किस चीज के लिए रिजर्व है, और वो रिजर्वेशन के लिए उसने क्या किया है। आपको सबसे इजी बताता हूं, जो रिजर्वेशन प्लॉट के खिलाफ आपको जो अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डीपी बोलते हैं, या टीपी में जाके एक एप्लीकेशन कीजिए कि ये प्लॉट के बारे में क्या रिजर्वेशन है, ये हमको बताइए। हाल ही में टीपी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं, उनको ये दिखाई दिया कि हमारे में से कुछ गद्दार लोग जो है, वो हर प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं हाउसिंग फॉर डिजाउस को। और हाउसिंग फॉर डिजाउस का मतलब क्या होता है कि उसमें से पीएपी जो है वो निकाल के जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनको देना है। मगर हमारे इनमें से जो गद्दार लोग हैं, वो कानून को सर्कुलर, मतलब एमआरटीपी को जो है उसको सर्कुलर एमआरटीपी के खिलाफ बनाते हैं, एमएमसी एक्ट के खिलाफ बनाते हैं, जो भी कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। ये लेवल तक हमारे कुछ लोग गिरे हुए हैं। ये जानकारी हमारे अभी जो डीपी में है उनको जानकारी मिली, और वो अच्छे लोगों ने, वो अभी टीपी रिमार्क्स जब देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि एज पर सेक्शन 64 ऑफ एमआरटीपी एक्ट, द रिजर्वेशन जो जिसके लिए है वो उसी के लिए ही होना चाहिए, उसके सिवाय और कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने किया है। बाद में उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि भाई जो टीपी जो रिजर्वेशन है उसमें कोई भी सेल बिल्डिंग नहीं बन सकती है। जो आज मैं बोला ना, लाखों करोड़ का फ्रॉड ये स्टेट डिपार्टमेंट कर रही है, ये कि जो जो रिजर्वेशन है आपको म्युनिसिपल टेटर का, तो म्युनिसिपल टेटर नहीं बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते इलीगल या बाकायदेशीर नहीं करते हैं। और वो हाउसिंग फॉर डिजाउस में जो सरप्लस एरिया आता है, बिल्डर को 10% ऑफ दी मार्केट रेट में बेच देते हैं, मगर पीएपी नहीं मिलते। इसलिए हमारे सब ब्रिजेस, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुके क्यों हैं, कि इनके पास उनको देने के लिए पीएपी नहीं है, मगर बिल्डर के गले में घुसाने के लिए इनके पास बराबर सब पीएपी निकलते हैं। तो ये गद्दारी नहीं है या इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है, तो ये क्या है? अगर ये नहीं है तो मैं विनती करता हूं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से कि ये आप मुझे समझाइए, गद्दारी नहीं है, ये टेररिज्म नहीं है, मगर ये इसी तरीके से काम करना उनपे कानून का तरीका है। ये आप हमको बताइए तो हम आपसे माफी भी मांगते हैं। फिर इन्होंने एक ऐसा काम किया, जो अभी देखिए कैसे लूटते हमारे प्रॉपर्टीज को। जो अब 100 फुट का समझो आप प्लॉट है, उसमें 10 फुट का उनको रिहैब करना है, और 5 फुट उनको बिल्डर को देना है एज ए इंसेंटिव, यानी 15 फुट। तो 85 फीट जो मिलता है, जो 85% जो है, ये इनको पीएपी करके लेना है। मगर ये क्या करते हैं, कुछ एक ऐसा अलग से सर्कुलर डीसीआर बोलते हैं ना आप, डीसीआर, जो आज हमारे कोर्ट ने बोला इट इज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डीसीआर में ऐसा कानून बनाते हैं
कि भाई बिल्डर्स को ये दे दिया जाए, और बिल्डर्स को वो भी क्या देते हैं, रेडी रेकनर रेट से देते हैं। अभी रेडी रेकनर रेट और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब और भी इसमें चालाकी क्या होती है कि जब ये DCR बिल्डर्स को देते हैं तो 1 रुपया 1 फुट को FSI लगता है 1.20, आप समझे, यानी 1 फुट जब BMC बिल्डर को देती है तो 1.20 स्क्वायर फीट पकड़ती है, मगर बिल्डर 100 फुट जब हमको बेचता है तो 180 और 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचता है। तो यहीं पे हमारी BMC जो है हमको 80% मार देती है। जो हमको 120 फुट में BMC देती है या माड़ा देती है, वही बिल्डर हमको 100 फुट 200 फुट में देता है या 180 फुट में देता है। तो ये डिफरेंस जो है ये हमको बर्बाद कर देता है, जिसके वजह से आज घर की कीमत बढ़ी हुई है। जब हमको BMC घर देती है तो वो हमको पार्किंग चार्जेस नहीं लगाती है। हमारे बिल्डर जबरदस्ती से गैर कानूनी तरीके से, उनका कोई अधिकार नहीं होते हुए भी हमसे लूट करते हैं। तो इसमें हमारा 15-20 लाख रुपया ये लूटते हैं, जो हमारे फ्लैट परचेस के बच सकते हैं। हमारे जो डेवलपर्स हैं वो फ्लोराइज लेते हैं, 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, ये हमारा वापस 10-20-25 लाख रुपया बचा सकता है। इस तरह से हमारी म्युनिसिपालिटी जो है ये बिल्डर्स को हमको लूटने का एक बहाना देती है, जबकि ये उनको खुद को देना है। बाद में आता है डेवलपमेंट चार्जेस, बाद में आता है मेंटेनेंस चार्जेस। आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे डेवलपर्स जो है हम पे बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब डेवलपर हमको पोजीशन देता है तो उसके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है, मगर ये हमको बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं आप फिट वेल पोजीशन दे लो। ये फिट फिट कुछ भी नहीं होता है। आपको बिल्डर को पूछना है कि ये फिट पोजीशन क्या होता है या फिटवेल पोजीशन क्या होता है। मुझे कानूनी तौर से BMC के कौन से सेक्शन पे या MRT पे के कौन से सेक्शन के तरीके से आप मुझे दे रही है बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने पोजीशन नहीं लिया, मैंने उनके खिलाफ 42 नंबर कोर्ट में MRTP के खिलाफ एक्शन लेने के लिए SRA को मजबूर किया और उन पे वो मोफा का सेक्शंस भी लगाया। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मोफा ये बहुत मजबूत आप रेरा है, मुझे रेरा के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, मगर रेरा में दांत कितने मजबूत है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि रेरा को देखने वाले उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्हीं को जज बनाया जाता है। जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स पेंडिंग है, जिनके खिलाफ एलिगेशंस है, वो भी उनको रेरा के में जजेस बनाया जाता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर रेरा के जो जजेस है उनको हाथ जोड़ के या ड्यू रिस्पेक्ट से बात करता हूं, मगर ये ऐसा भी होता है। तो मगर कोर्ट में जब जाते हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग तो कम से कम नहीं होते हैं, और वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते कि जिसको बचाने के लिए उनको ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप जो है ये बिल्डर ने अगर आपको पोजीशन OC नहीं दिए, बिल्डर आपके पास मेंटेनेंस ले रहा है, और आपको ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट का बताना चाहता हूं कि बिल्डर जब आपको वो बिल्डर आपका बुकिंग करता है तो उसके अगर 11 फ्लैट्स बुक होते हैं, कितना 11 फ्लैट्स बुक होते हैं, तो उसको सोसाइटी बनाना मैंडेटरी है, उसको मैंडेटरी है। आप ये ध्यान में रखिए, ये उसको डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये अगर 11 आदमी की बुकिंग होने के बाद अगर सोसाइटी नहीं बनाते हैं तो उसके ऊपर फौजदारी प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और आप करना चाहिए। अगर 11 मेंबर्स का सोसाइटी उन्होंने बनाया तो 4 महीने के अंदर उसको सोसाइटी को पोजीशन मतलब कन्वेंस देना है। आप वापस सुनिए कि अगर 11 लोगों की सोसाइटी हो गई है तो बिल्डर को सोसाइटी को कन्वेंस 120 दिन में देना है। मगर हमारे जो डेवलपर्स है वो तो जिंदगी भर हमको कन्वेंस नहीं देते, इसलिए कि वो हमारी गवर्नमेंट उनके साथ मिली हुई है। हमारे गवर्नमेंट जो है उनको FSI जो बढ़ाती है तब ये रोकती नहीं कि भाई आपका इतना टाइम पोजीशन हो गया, आपने ये पोजीशन दिया, ये आपका हक नहीं, आप सोसाइटी का हक है। ऐसा नहीं करते, और बिल्डर अपना हक जमाने के लिए हमको कन्वेंस नहीं देता है। इसीलिए हर
एक्टिविस्ट या हर अलर्ट सिटीजन ने, जो बिल्डर आपको कन्वीनियंस नहीं देता है उसके खिलाफ मोफा के तहत उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कीजिए और डिम कन्वेंस के लिए आप अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कीजिए। फिर हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो हमारी लीज रेंट जो है वो ₹1 पर स्क्वायर मीटर से देती है। बम्बई दादर शिवाजी पार्क, बम्बई दादर कैलाश जो लस्सी वाला है उस एरिया में ₹1 स्क्वायर मीटर पर ईयर, मतलब ₹1 स्क्वायर फीट पर ईयर, मतलब 10 पैसा स्क्वायर फीट पर मंथ दादर जैसा एरिया में लीज रेंट पे देती है। आप सोच सकते हैं ये हमारे लूट नहीं, ये इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं तो क्या चीज है। और ये भी उनको जानकारी है और मैंने बताया है। आप ये सेक्शन को नोट कीजिए, एमएमसी एक्ट के सेक्शन 92 सीसी ये कहती है कि किसी भी प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट वैल्यू से कम किसी भी हालत में नहीं दे सकती है। मगर हमारे स्टेट डिपार्टमेंट एलओआई में झूठा लिखती है। एलओआई में हमारे स्टेट डिपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सेल बीएमसी और यहाँ पे उसमें सीनियर जॉइंट एमसी का होता है, झूठा लिखती है कि अंडर 92 डीडी वी आर गिविंग हिम ₹1 पर स्क्वायर मीटर। अब 92 डीडी क्या होता है? 92 डीडी ये होता है कि पब्लिक यूटिलिटी का से जैसे मैदान है, टॉयलेट है या पब्लिक भी है जो प्राइवेट नहीं है, उनके लिए पर ₹1 पर स्क्वायर मीटर का लीज होता है। मगर हम लोग ये होने के बावजूद भी गद्दारी करते हैं सिटीजन से, हमारे देश से गद्दारी करते हैं और लाखों करोड़ रुपया का हमको नुकसान करते हैं और इसके लिए हमको खिलाफ लड़ना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट से धोखा है, मगर उससे ज्यादा धोखा हमारे इकोनॉमिक टेररिस्ट से है जो हमारे लूट कर रहे हैं, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी के लूट कर रहे हैं और उसको रोकना जो है वो सबसे बड़ा जरूरी काम है। अब हमारे जो पब्लिक सर्वेंट है या ब्यूरोक्रेट्स हमारी हाउसिंग में कैसे लूट करती हैं? ओपन प्लॉट है, ये है तो हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे ब्यूरोक्रेट्स साथ में आते हैं और वो खुले प्लॉट को एनक्रोच करने चालू करते हैं। तो अब एनक्रोच करने के टाइम पे वो झोपड़पट्टी बेचते हैं, उस पे पैसा मिल जाता है। झोपड़पट्टी होते होते उनको बचाने के लिए पैसा मिलता है या वोट्स मिलता है, उनको बचाते हैं। फिर कुछ टाइम होने के बाद में उनको पक्का घर देने के लिए एसआरए स्कीम लाते हैं और एसआरए स्कीम में वापस पैसा खाते हैं। अरे कितना खाओगे? आपका पेट कितना बड़ा है भाई? कम से कम लोगों का बारे में तो सोचो। अब हर चीज सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आप हमको निकम्मा क्यों करते हो? आप पब्लिक प्रॉपर्टी, आज सबसे बड़ा एसेट अगर गवर्नमेंट के पास है तो प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी किसी भी हालत में किसी को भी बेचना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मंथली रेंट आपको मिल सकता है जिंदगी भर के लिए। आप बेच के हमारे आगे के जो इनकम के सोर्स आप उसको सत्यानाश कर रहे हो और ये जानकर भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये कर रहे हैं। तो ये गद्दारी नहीं है या इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? ये हमारे पॉलिटिशियंस हमको बताए और हमारी गलती है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब मेरा यह मानना है कि आप गवर्नमेंट हो या आप पॉलिटिशियंस हो, आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पक्का लोगों को देना जरूरी है। जब कोई भी आदमी एक घर बांधता है, आप उसको घर देना चाहते हो तो आप जरूर दीजिए, मगर वो घर पे उसका हक नहीं होना चाहिए। आप क्या आपके बाप की जागीर समझते हो? क्या फ्री में दे दिया? आप उसको घर रहने के लिए दीजिए और नॉमिनल रेंट दीजिए। जो फुकट में देते हैं उसकी कीमत नहीं होती है, तो उनसे रेंट लीजिए और उस जगह पे उनकी मालकी हक नहीं होना चाहिए। वो जगह वो रेंट पे नहीं देना चाहिए। अगर उसने रेंट पे दिया, अगर उसने बेचा तो उसपे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और उसको बड़ा फाइन लगाइए, क्योंकि आप उस पे मेहरबानी कर रहे हो कि आपके पास घर नहीं है, बच्चे चलो आ जाओ, आपको मैं अच्छा घर देता हूं, अच्छी तरह से रहो। मगर आप हमारी प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चलेगा। ये सिग्नल हमें हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सही तरह से देना है और इसीलिए हमको 33(7) और 33(10) इसको स्क्रैप करने के लिए मुहिम चलाना है
जरूर पड़े तो हमको रास्ते पे उतरना है, जरूरत पड़े तो हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, मगर ये लूट को जो हाउसिंग के नाम से हो रहा है, जिसके वजह से आज कम से कम लाखों करोड़ की अफरा तफर हो रही है। आपको पता है महाराष्ट्र पे सिर्फ 5-5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये बहुत छोटी बात है। ये हमको दिखा दे 5.5, हमारा हर दिन में लाखों करोड़ की लूट हो रही है। और मैंने ये आज गए 4 साल से सीएम के लाया है, हर गवर्नमेंट के सीएम के पास मैंने अपने बातें रखी है। आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने 40,000 करोड़ का भाड़ा का फ्रॉड ओपन किया है, और एक भी ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियन ने मुझे साथ नहीं दिया, बल्कि उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे कोर्ट ने मुझे बचाया, और हमारे कोर्ट ने ये गद्दारों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश दिए। मगर हमारी दुख भरी कहानी है कि हमारी गवर्नमेंट जो जिसके वजह से इनको 40,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, 40,000 करोड़ ये कानूनी तौर से दिखाता हूं, मगर ये लगभग 4 लाख से 5 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है, ये नहीं लेते हैं। ये 4 लाख करोड़ का फायदा नहीं लेते हैं, मगर जो गद्दार है उनको बचाने के लिए, मुझे तकलीफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। और आज मुझे उनके गवर्नमेंट का पैसा वसूल करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, जो कि मैं केस जीता हूं। तो इससे दर्द भरी कहानी आप क्या सोच सकते हो, ये आप ही सोचिए। तो हमारा पॉलिसी है 33(7) कैंसल, 33(10) कैंसल, और जो फ्री में आप घर दे रहे हैं कैंसल। आपको भाड़े पे उनको देना है, और वो भाड़े पे देंगे, वो बेच नहीं सकते, भाड़े पे दे नहीं सकते, और वो आपको वापस करना है। ये 3 चीज अगर हम करेंगे तो हमारे पास अगले 5 से 10 साल में लाखों करोड़ का फायदा होगा, और हमको कर्जे की जरूरत नहीं। और हर बिल्डिंग जो है वो म्हाडा या एसआरए ही बनाएगी, और उसका हर फायदा 4 एफएसआई का फायदा जो है हमारे म्हाडा और एसआरए को ही मिलेगा, जिसके वजह से हमारा सरप्लस एरिया बढ़ेगा, हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो भाव कम होगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जो बिल्डर 100 फुट को 200 फुट बेचता है, वही म्हाडा और एसआरए हमको 100 फुट 120 फुट में देगा, तो हमारे 80% का जो फायदा है वो इधर ही हो गया। तो आपको सभी को यह ध्यान रखना है कि हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, ये हम पे फ्रॉड है, ये हम पे लूट है, और उसको आज हमारे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया है कि डीसीआर इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने क्रॉफर्ड मार्केट के बारे में भी अभी कल ही मेरा पीआईएल फाइल हो चुका है 14690 ऑफ 220 ऑफ 2021। अभी दोनों मतलब ये लूट के बारे में भी फाइल हो चुका है, क्रॉफर्ड मार्केट के बारे में भी फाइल हो चुका है, मगर कोविड की वजह से कब आएगा पता नहीं। अभी आपको और एक मिसाल दिखाता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में ये जमीन फ्री में देते हैं, इनको ऊपर एफएसआई देते हैं, इनको ऑल फैसिलिटीज देते हैं। तो आज सांता क्रूज जैसे जगह पे आप 300 फुट के लिए 70 लाख रुपए में कैसे बेचते हैं? इसका कुछ हमको हिसाब दे दो गवर्नमेंट। आप एफोर्डेबल हाउसिंग 70 लाख का घर लेने वाला वो एफोर्डेबल हाउसिंग कैसा हो सकता है? आप उसको फ्री में एफएसआई देते हो, आप उसको हर चीज फ्री में देते हो, तो आप बताइए हमको 70 लाख में कैसा होता है? कल्याण में 300 फुट के लिए 30 लाख रुपया, आप बताओ हमको 10,000 रुपए किधर खर्चा होता है? तो हर चीज गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हर चीज जो बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छे बनाने के नाम से हमसे गद्दारी की जाती है, या हमको लूटने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर चीज में हो सकता है, मगर हमको तो ऐसा दिखता है। और ये दिखता है तो गवर्नमेंट का अभी हमको एक्सप्लेनेशन दे दो कि आप 300 फुट को 70 लाख में कैसे बेचने देते हो, आप 4 एफएसआई बिल्डर को कैसे देते हो, इसका हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। म्हाडा, अभी म्हाडा क्या करती है कि वो सरप्लस एरिया आज जो लेने का होता है वो कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन में म्हाडा लेती नहीं है। आज 35 साल से लिया नहीं था, उसकी मैंने दिखाया, बाद में हाई कोर्ट में गया, और आज कम से कम ऑफिशियली या अनऑफिशियली तो और बहुत है, ऑफिशियली 2 लाख स्क्वायर मीटर 1.87 या 1.97 स्क्वायर मीटर, मतलब 2 लाख स्क्वायर मीटर, इसका मतलब 50 लाख फुट की जगह हमारी बाहर थी। और जिसके वजह से मैं हाई कोर्ट में 28/17 पीआईएल फाइल किया, और अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मगर हमारे गवर्नमेंट को इसको वसूल करने का या हमको साथ में लेने का, भाई आपने अच्छा काम किया है, आप आ जाओ हमारे साथ म्हाडा में, आप हमको हेल्प करो रिकवरी में, ये करने का छोड़ के आप हमारे खिलाफ काम करते हो, इसका मतलब आप हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हो, ये मेरा मानना है।
फिर म्हाडा क्या करती है, आपको जो रिपेयर्स में है उसके कुछ हिसाब नहीं देती है। आप रिपेयर बनता है 5 महीने में बिल्डिंग वापस खराब होती है, आपके रोड बनते हैं 2-3 महीने में खराब होती है, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये चीज के लिए हमको काफी लड़ना है, एंड दिस इज व्हाट आई से इज इकोनॉमिक टेररिज्म। अभी मैं आपको ले जाता हूं इलीगल कंस्ट्रक्शन। अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट करना है तो आप सीधा, पहली बात है कि आप आईओडीसीसी या एलओआई के लिए एक कॉपी मंगाए, आरटीआई में डालिए। वो कॉपी आने के बाद में उसके कंप्लायंस हुए कि नहीं देखिए। जब आप उसके कंप्लायंस हुए कि नहीं देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि एलओआई के कंप्लायंस नहीं होते हुए भी हमारे म्युनिसिपैलिटी ने उनको बिल्डिंग बांधने की परमिशन दी है। और एक कानून है कि एलओआई के कंडीशंस होने नहीं कंप्लाई किया जाता है तो उनको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता है। मगर मेरे पास ऐसे कानूनी डॉक्यूमेंट्स है जिसके खिलाफ मैं भी रिट फाइल किया हूं कि एलओआई के कंडीशंस तो छोड़ो, यहां तक कि एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ है, स्टैंप ड्यूटी उसकी भरी नहीं हुई, लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने सीसी दिया तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया और एडिशनल एफएसआई दिया है। अब ऐसे काम को हम इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं बोलेंगे या एक गद्दारी देश के साथ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और हमारे पॉलिटिशियंस हमको बताए तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको एलओआई पूछना है, एलओआई पूछने के बाद में आपको वो कंप्लायंस हुआ है क्या पूछना है। अगर वो कंप्लायंस नहीं हुआ है तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, और वो कंप्लेंट फाइल करने के टाइम पे आपको एमएमसी एक्ट के खिलाफ करना है और उसको कंप्लेंट में लिखना है कि जो जो अधिकारी है वो हमको, आप ये सर्कुलर का ये डेट लिख लीजिए, बाद में गौरंग जी आपको सब दे देंगे। 18/1/2013 का सर्कुलर है, उसमें क्लियर कट है कि वो कंप्लेंट को कैसा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैंडल करेगी। मगर ये कोई भी नहीं करते। हाल ही में मैं एक असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया हूं, प्रोसिक्यूशन कर रहा हूं, उन्होंने कुछ भी मेंटेन नहीं किया और झूठे दस्तावेज बनाए हैं। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर झूठे दस्तावेज बनाते हैं और हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और हमारे डीएमसी उन पे एक्शन लेने के लिए डरते हैं। ये आज इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? मैं आपको ये सब इसलिए दिखाता हूं कि आपको अंदर से जागरूक हो देश प्रेम, आपके अंदर से सच के लिए लड़ने के लिए हिम्मत हो जाए कि आप अगर नहीं लड़ोगे आज तो ये सोचिए कि आपकी अगली जनरेशन रास्ते पे भीख मांगेगी या झोपड़पट्टी में रहेगी। यहाँ ये अमीर लोगों के खिलाफ इनके दुकान में नौकर रहेंगे या उनके ड्राइवर होंगे। अगर आप ये चाहते तो चुप बैठिए, अगर आप नहीं चाहते तो ये हर चीज के खिलाफ हमको आवाज उठाना है, हम आवाज उठाएंगे। आप अगर साथ देंगे तो बहुत मेहरबानी, अगर आप नहीं देंगे तो हम अकेले लड़ेंगे, मगर लड़ेंगे ये जरूर। इसलिए मगर आपका साथ लेना बहुत हमको जरूरी है क्योंकि हम अकेला नहीं पूरा पड़ते हैं, हम थक जाएंगे मगर फिर भी हम लड़ेंगे। फिर दूसरा बात है, हमारी जो म्युनिसिपैलिटी है, हमारी जो पुलिस है, ये रेफ्यूज एरिया को जो एनक्रोच करते हैं उनके खिलाफ चुप बैठते हैं, या पार्किंग स्पेस को करते हैं उसमें उसके चुप बैठते हैं। जब भी आप नई बिल्डिंग बनते हैं, ज्यादातर ये जो बहाना है ये हमारे बॉम्बे 3, 8, 9, 10 में होता है। और आपको खुशी की बात बताता हूँ, आज हमारे यहाँ अपने साथ ग्रुप पिटिशन के साथ मुंबा देवी प्रजा फोरम भी है जो हमारे साथ काम कर रही है। हम सब मिलके हमारे एसवीपी रोड के अच्छे अच्छे भले भले जो दिग्गज है उनको वहां से हटाने के लिए हम सफल हो चुके हैं और उनकी जो ताकत को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम काफी तरह से हम उसमें सफल हो चुके। तो आपको आपके कंप्लेंट के बाद 64 सी एमएमसी एक्ट को देखो, उसमें तरतूद है कि कंप्लेंट को 7 दिन में वो ऑफिसर को डिस्पोज करना है और मैक्सिमम 45 डेज में वो डिपार्टमेंट को डिस्पोज करना है, वो कभी नहीं करते। तो आपके हर कंप्लेंट में ये लिखिए कि आई वांट द मैटर टू बी डिस्पोज एज पर सेक्शन 64C(1), as per circular 18/1/2013, as per रेगुलेशन 10 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। ये 3 चीज लिखिए और हमको इसके से जाइए तो आपके पास एक अच्छा ग्राउंड होता है। ये गद्दार जो है, जो काम नहीं करने वाले हैं, उनको डर लगेगा कि भाई मेरे पास मेरे खिलाफ जाने के लिए उनके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जमा किए हैं
आज तक हम कानूनी तौर से नहीं लड़ने की वजह से इनको पता है कि कोर्ट में जाएंगे तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप जब एप्लीकेशन करोगे तो एप्लीकेशन में ये 3 चीज की जरूर से लिखिए कि आई वांट दैट यू विल डिस्पोज माय एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस। सिमिलरली उसके बाद में अगर बीएमसी नहीं काम करती है तो आपके पास होता है कि आप पुलिस के पास जाइए। पुलिस भी आपको पता है कि जब पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, आपको नचाती है, इतनी बुरी तरह से नचाते कि आप पागल हो जाते हैं। अब पागल आप नहीं होगे। अब जो गद्दार है, जो गलत काम करते हैं वो पागल बनेंगे और जो अच्छे ऑफिसर्स है वो हमारे पीछे खड़ा रहेंगे और हमको शाबाशी देंगे और हमारे काम को और भी मजबूत बनाएंगे। जब आप पुलिस के खिलाफ पुलिस के पास कंप्लेंट करते हो तो उस पे आप लिखिए कि मेरे कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, तो आपको इमीडिएटली हमारा रजिस्टर करना है। उनको ललिता कुमारी जजमेंट पैरा 111 का रेफरेंस भी दीजिए। बाद में ललिता कुमारी के जजमेंट के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5/2/2014 का सर्कुलर है जिसमें लिखा है कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करना ही चाहिए। उन्होंने सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो गुनाह करते हैं। और सेक्शन 149 सीआरपीसी आप इसको नोट कीजिए। सेक्शन 149 सीआरपीसी वो ये कहती है कि द पब्लिक पुलिस हैज टू प्रिवेंट टेक एक्शन टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस 149। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन करना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जब नॉर्मली इलीगल कंस्ट्रक्शन कब होता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जबकि बीएमसी होती है या बीएमसी बंद होती है। तो आपको पुलिस क्या कहती है, अरे इलीगल कंस्ट्रक्शन आप बीएमसी के पास जाओ, हमारे पास क्यों आते हो? तो उनको बोलने का 149 सेक्शन सीआरपीसी के खिलाफ अगर कोई गलत कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसको रोकने का काम आपका है। अगर आप नहीं करते तो आप 166 आईपीसी के तहत आप गुनाह करते हो। और इसलिए आपको हमारे साथ अभी के अभी चलना है और जो गैर इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है उसको बुला के उसको ताकीद देना है, उसके खिलाफ एनसीए रजिस्टर करना है और उनको ताकीद देके छोड़ना है ताकि वापस वो कंस्ट्रक्शन करे तो उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कैसा लड़ा जाता है। अब मैं आपको ये टॉपिक इलीगल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक बंद करता हूं, हाउसिंग का टॉपिक बंद करता हूं। अब मैं आपके पास आता हूं हॉकर इशू जो है। हॉकर इशू का मतलब एनक्रोचमेंट ऑन रोड एंड फुटपाथ। मेरे हाउसिंग का जो है बंद हो गया, जिसके जो भी सवाल है आप लिख लीजिए और बाद में आप हमको जब क्वेश्चन आंसर टाइम आएगा तो आप मुझे बता दीजिए। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा मेरे नॉलेज या मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो हॉकर लाइसेंस है, महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन वर्सेस अनदर वर्सेस एमसीजीएम, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है या जजमेंट दिए है जिसमें हॉकर्स कैसा होना चाहिए, हमारे राइट्स क्या है, हॉकर्स के राइट्स क्या है, इसके बारे में लिखा है। As per Article 19(1)(g) of the Constitution, everyone has a right to conduct a trade on payment, but subject to Article 19(6) of the Constitution. मतलब क्या? और वो पैरा 79 में लिखा है, आप जान के लिखिए चाहे तो। पैरा 79 में लिखा है कि राइट टू कंप्यूटर टू मूव फ्रीली एंड यूज रोड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(d). तो जैसा 19(1)(g) में उनका राइट है पेमेंट पे बिजनेस करना, वैसा 19(1)(d) हमारा राइट है कि हमको फ्री सेफ फुटपाथ और रोड मिलना। तो इसको संभाल के हॉकर्स करना है। हॉकर्स को हमको हमारा ये जो बेसिक राइट है, मैंडेटरी राइट है कि फुटपाथ और ये हमको चलना और गाड़ी के लिए फ्री चाहिए, उसको निकाल के उसको वायलेट करके हॉकर्स का परमिशन देना ये बिल्कुल इलीगल है। ये आप अपने दिमाग में डालिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि हॉकर्स को हम जिंदगी भर नहीं उठा सकते, बिल्कुल गलत।
मैं आपको अब जो ये 10-15 मिनट में मैं आपको हॉकर्स के बारे में जो बताऊंगा, अगर हर आदमी ये हॉकर्स की पॉलिसी को हम सही तरह से फाइट करेंगे, तो हॉकर्स हमारे यहाँ अगले 1 साल के बाद नहीं दिखेंगे। जो भी लेजिटिमेट और जेन्युइन हॉकर्स है, वही रहेंगे। मगर हॉकर्स के नाम पे जो हमारे फुटपाथ और रास्ते की लूट हो रही है, उसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी एक हॉकर्स का जो लाइसेंस होता है, वो सिर्फ 1 मीटर बाय 1 मीटर होता है, यानी 3 फुट का लगभग होता है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट का दुकान होता है रास्ते पे, तो वो हॉकर हो ही नहीं सकता। ज्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत जगह से फर्नीचर के दुकान वाले होते हैं। वो तो फुटपाथ तो छोड़ो, वो तो रास्ता 50% छोड़ो, उसके आगे बाइक लगाते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी जाने के लिए हम पे मेहरबानी कर रही है, और हमारी म्युनिसिपैलिटी और हमारे पुलिस उनसे डरते हैं या क्या करते हैं हमको नहीं मालूम। मगर हम नहीं डरेंगे इसके आगे। हम ये पॉलिसी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे अगर म्युनिसिपैलिटी और पुलिस हमको साथ नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ हम मुकदमा दायर करेंगे। अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये हॉकर्स के लाइसेंस दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि उसको व्हीकलर और पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए। किसी भी दुकान को और रास्ते को एंट्री देने के लिए उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और रास्ते के कोई एक ही बाजू में आप या डाउन, जो अपने पास 2 फुटपाथ होता है, एक आपका, मैंने समझो एक नॉर्थ जाने का, एक साउथ आने का, तो एक ही जगह होगा, दूसरा फुटपाथ खाली रहेगा, जो आज हमारे पास नहीं है। हमको ये जानकारी नहीं थी, इसलिए हम चुप बैठे थे। तो पहला आपको दिखाई दिया कि दोनों फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है, तो आपका काम है म्युनिसिपैलिटी और पुलिस को जाके कंप्लेंट करना। उसके बाद में है, आपने आरे में आरे आरे कॉलोनी का स्टॉल देखा है या सरिता का स्टॉल देखा है? वो स्टॉल भी 1 बाय 3, 1 मीटर बाय 2 मीटर, यानी 6 बाय 3 का होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ तो दिखते हैं, हम 10-10 फीट के बनाते हैं, और वो स्टॉल में सिर्फ आरे का दूध ही बिकना चाहिए। वहां होटल चालू किया जाता है, किराना चालू किया जाता है, और कुछ कपड़े बेचा जाता है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा के उनको जरूरी से प्रोसिक्यूशन के लिए या उसको निकालने के लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉल स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, वो उनको बाकी चीज के लिए नहीं दिया जाता है। अब ये हॉकर लाइसेंस जो दिया जाता है, वो कपड़ा लत्ता, फ्रिज, वॉच, इसके लिए नहीं दिया जाता है। ये ऑर्डिनरी आइटम्स होता है, खाने पीने का आइटम्स होता है, ग्रेन्स होता है, टमाटा होता है, कैंची होता है, या बास्केट होता है। ये ऐसी चीज होता है जो डेली नेसेसिटीज में लंबा जाने के लिए वहीं से लाए। ऑर्डिनरी चीज, कोर्ट ने कहा है, इट इज सिंपल एंड ऑर्डिनरी थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड डेली। तो आप बड़ा स्टॉल लगाते हो, कपड़ा बेचते हो भाई, आप बड़ा स्टॉल लगाते हो, कपाट बेचते हो भाई, बिल्कुल गलत, उसको वो परमिशन मिल ही नहीं सकता। और सबसे मुद्दे की बात आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टॉल नहीं लगा सकते। आपके दिमाग में जो है, हॉकर का लाइसेंस मिलने के बाद में वो स्टॉल लगा सकते हैं, वो छप्पर डाल सकते हैं, वो टेबल लगा सकते हैं, वो गाड़ी लगा सकते हैं। ये कोई भी चीज हॉकर लाइसेंस में इंक्लूड नहीं है। हॉकर्स का मतलब होता है कि वो अपनी चीज हाथ में लेके बैठेंगे या जमीन पे लेके बैठेंगे, और वो सुबह 10 से लेके शाम, नहीं, सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बिजनेस करेंगे, और बाद में अपना थैला लेके निकल जाएंगे। वहां वो स्ट्रक्चर बांध के उनकी बाप की जागीर नहीं करेंगे। आज हमारी जो स्टॉल बनाया जाता है, वो उनकी बाप की जागीर हो जाती है, वो बाप का बेटे को, बेटे का पोते को, किसकी जगह है भाई? तो इसके खिलाफ हमको लड़ना है। हमारी हर पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारे पब्लिक सर्व ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियंस उनके वोट्स के लिए, उसके नोट्स के लिए हमको बर्बाद करते हैं। ये इसलिए होता है कि रिच, जो अमीर है उनको नोट देते हैं, जो गरीब है उनको वोट देते हैं, और हम मिडिल क्लास है, हमको हमको गोट बनाते हैं कि हमको काट के हमारे गोश ये वोट और नोट के लिए दिया जाए। हम अब गोट नहीं बनेंगे, हम किसी का खाना नहीं बनेंगे। आपका वोट और नोट आप देखिए कैसा करना है, मगर हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी पे हम किसी भी तरह से एंकरेज होने को बिल्कुल नहीं देंगे। हम इस तरह से मुहिम उठा के हमारे रास्ते को, हमारे फुटपाथ को पूरी तरह से हम साफ करेंगे।
अब आता है कि आपको ये पता चला है ना कि स्टॉल नहीं हो सकता है, टेबल नहीं हो सकता है, स्टैंड नहीं हो सकता है, स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, हैंड कार्ट नहीं हो सकता है, तो बचा क्या? हाथ में लेके घूमो। अभी ये पॉलिसी के पीछे अच्छा मकसद था, पब्लिक पर्पस था कि जो सबसे गरीब आदमी है, उसको कल मौत है, उसको खाना नहीं है, उसको नौकरी नहीं है, तो उस टाइम पे उसको 2 वक्त का रोटी मिले, इसीलिए उसको ऐसे कंडीशन में हॉकिंग जोन देता है, क्योंकि वो धूप में खड़ा रहना है, बारिश में खड़ा रहना है, उसको ठंडी में खड़ा रहना है। तो ये इतना मेहनत कौन करेगा जिसको सही में पेट को भूख है, जिसको कल उसके खाने का पता नहीं, वही। मगर सिक्योर इनकम है, उसके लिए ये हॉकर का बिजनेस नहीं है, ये मेरा मानना है। अब ये जो हॉकिंग का हॉकर्स का परमिशन है, वो जहां भी स्कूल है, जहां भी मंदिर मस्जिद है, जहां भी हॉस्पिटल है, जहां भी फुटब्रिज या ओवरब्रिज है, उसके 100 मीटर के आसपास उनको हॉकर का परमिशन नहीं दिया सकता। फिर म्युनिसिपल मार्केट है और रेलवे स्टेशन है, वहां 150 मीटर के दूरी पे उनको हॉकर्स का परमिशन मिल सकता है। और जो मंदिर है, वहां वो खाली फूल बेच सकते हैं, सैंडलवुड बेच सकते हैं, कैंडल बेच सकते हैं, और वो किसी भी तरह से आवाज या चिल्लाने का या जो सिटीजन से उनको तकलीफ हो जाए, ऐसा किसी भी तरह से कुछ भी काम नहीं कर सकते। हॉकर्स को रास्ते पे खाना पकाना तो बिल्कुल ही मना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खाना पकाना तो सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, मगर क्या करे हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनको उन पे दया आती है। जो लाइसेंस है आज हमारे दुकान पे, वो पेनल्टी लगाते हैं, और जो बेकायदेशीर है, जो अनहाइजीनिक खाना देते हैं, उनको उन लोग परमिशन देते हैं। हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अंदर नहीं बैठने का, उनको बोलते हैं आप दस्ते पे दे दो। ये तरह का जो गलत काम करने का जो कायदा बनाने का तरीका है, इसी को मेरे समझ से ये इकोनॉमिक टेररिज्म है, और ये जो है, ये सही कानून से चलने वाले को नहीं मिलता है। अभी आप सोचिए कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप एक चाल में रहते हो और आपका रिकंस्ट्रक्शन में जाता है, तो आपके बिल्डर के साथ आपको कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। 10 साल के लिए आपको बाहर रहना पड़ता है, आपको रेंट नहीं मिलता है, आपको वो नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, और जो एनक्रोच करते हैं उनको फ्री में सब कुछ मिल जाता है। तो ये क्या है? तो आप क्या बताना चाहते हो कि जो हॉनेस्ट वर्कर है, जो ऑनेस्ट सिटीजन है, वो पागल है, उसको अक्ल नहीं है, बेवकूफ है, और जो चोरी करता है वो होशियार है? ये आप बताना चाहते हो? ये इसके आगे नहीं होगा। इसीलिए हमको 33(7), 33(10) और ये हॉकर्स का जो एक्ट है, उसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से कंप्लायंस करना है। हम किसी भी एक्ट के खिलाफ नहीं है, मगर इस एक्ट को जो मिसयूज करता है और जो कॉमन आदमी या सिटीजन्स को तकलीफ दिया जाता है, उसके हम पूरी तरह से हम आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं, बीएमसी का 64C का मैंने तो आपको बता दिया है। जेडी सर्कुलर 2013 का मैंने बताया कि वो सिस्टमैटिक उनको रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या करना है, ये सब सर्कुलर आपको मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, ये अभी 8-10 दिन पहले मुझे मेरे दिमाग में आया कि हाई कोर्ट की जजमेंट है 3 मई 2019, 3 मई 2019 के हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया है कि रास्ते का एनक्रोचमेंट गलत है, म्युनिसिपैलिटी उसको उठाएगी। मगर म्युनिसिपैलिटी उठाने के बाद में चूहा और बिल्ली का खेल होता है कि यहां से म्युनिसिपैलिटी निकल गई कि वहां से आ गए, और बाद में म्युनिसिपैलिटी भी सो गई, हमारे पुलिस भी सो गए। तो हमारे एक जज ने बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन म्युनिसिपैलिटी एनक्रोचमेंट को निकालेगी, उस दिन से लोकल पुलिस स्टेशन की जवाबदारी होती है कि वो उसको साफ रखे। अब आम आदमी जब पुलिस स्टेशन में जाता है कि भाई एनक्रोचमेंट है, तो हमारे से पुलिस दादागिरी करती है और हमको भगा देती है वहां से, बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं है। तब आपको उनको दिखाना है कि पहली बात तो यह है कि रास्ते पे जो एनक्रोचमेंट होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस इसलिए है कि रास्ते पे एनक्रोचमेंट होने के बाद हमारे जान को धोखा होता है और हमारे सेफ्टी कम हो जाती है, और उससे हमारी जान जा सकती है। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 431 लग जाता है।
आईपीसी सेक्शन 431 ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके लिए 5 साल की सजा है। और कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जब दिया जाता है तो उसको वो नान नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आप जब कोई भी रास्ते का कंप्लेंट करोगे तो बीएमसी के खिलाफ कंप्लेंट करोगे तो 166 लगाइए कि बीएमसी ने कानून के ओबीडियंस नहीं किए, और आप बीएमसी को आरटीआई डालिए कि हमारी कंप्लेंट के बाद में आपने क्या एक्शन लिया है। वो दे देंगे कि आपने मैंने निकाला, तो फिर उनको पूछना है कि आपने निकाला तो ये लोकल पुलिस स्टेशन को आपने कंप्लेंट फाइल किया क्या? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो आपको वो फोटो सहित और लेटर सहित पुलिस स्टेशन को समझाना है कि हमने ये निकाला है, अब आपकी जवाबदारी है। फिर आप पुलिस स्टेशन में जाइए कि भाई ये देखिए बीएमसी ने हमको लिख के दिया है, ये देखिए हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये देखिए 431 सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप इसको उठाते हैं कि नहीं उठाते? अगर वो नहीं उठाते हैं तो फिर वापस आप इनके खिलाफ 166 में जाइए। अब आप 166 में किसके खिलाफ जाएंगे? म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ जाएंगे 166 से, और बीएमसी और पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जाएंगे। अभी आपको लिखना है 154 के खिलाफ, अभी 154 के अंदर आपको एफआईआर रजिस्टर करना है, वो नहीं करते हैं तो फिर आप 154 सबसेक्शन 3 के तहत आप डीसीपी को लेटर लिखिए कि भाई आपका जो सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, आपका जो एसीपी है, आपका जो आईओ है, वो नहीं काम कर रहा है, वो 154 का उल्लंघन कर रहा है, वो ललिता कुमारी का उल्लंघन कर रहा है, वो आपके हाई कोर्ट के जजमेंट 3519 का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उनको डायरेक्शन दीजिए कि आप उसको एफआईआर रजिस्टर करो। मगर ये बहुत दुख की बात है कि हमारे डीसीपी क्या लिखते हैं मालूम है? नेसेसरी एक्शन, और उसी आदमी के पास भेजते हैं जिसने गलत काम किया है। आपको ये बताना चाहता हूं कि अंडर सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 द डीसीपी इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड, उनको ये डायरेक्शन देना ही है, वो नेसेसरी एक्शन नहीं लिख सकते। डायरेक्शन देना है कि एफआईआर रजिस्टर करो या मत करो, और उसका रीजन ऑर्डर देना है। मगर हमारे डीसीपी ये नहीं करते हैं, और इसके वजह से वो भी कानून का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए जब आप किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या के खिलाफ बीएमसी में जाते हो, तो बीएमसी नहीं करते तो उसको आरोपी बनाने का, उसके डीओ को अभी आपको मैं सर्कुलर भी देता हूं कि बीएमसी इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेती है तो डिजिग्नेटेड ऑफिसर की एक पोस्ट होती है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है, और डीएमसी, ये तीनों भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जवाबदार है। आप ये मत सोचिए कि कानून कमजोर है, कानून बहुत मजबूत है। हम लोग कमजोर है, हम कानून नहीं जानते हैं, और जिस दिन हम ये कानून हर 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 सिटीजन को बताएंगे, उस दिन हमारी बंबई अच्छी होगी। और आपको और एक अच्छी खबर सुनाता हूं, एक सर्कुलर है सी कॉन्फ्रेंस 1332, इसकी कॉपी भी मैं गरुण जी को दे दूंगा। 20/11/2003 का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में ये साफ लिखा है कि ये जो लोग हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बचाते हैं, इनको डिसमिस और रिमूवल के सिवा और कुछ भी पनिशमेंट नहीं है। ये बहुत अच्छी सर्कुलर है जो इन्होंने दबा के रखी है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, और इसको हमको पूरी तरह से फैलाना है। ये 20/11/2003 का सर्कुलर जो डिसमिसल कहती है, और हाई कोर्ट की जजमेंट 3519 जहां पुलिस की जवाबदारी है और वो नहीं करते थे उनको खिलाफ एक्शन लेना। तो ये चीज अगर हम साथ में उसको ड्राफ्ट करके अगर हम पुलिस और बीएमसी को अप्रोच करेंगे तो उनको कानून के तहत काम करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से आज 80% जो पुलिस ऑफिसर है या बीएमसी के ऑफिसर जो अच्छे हैं, जो हॉनेस्ट है, जिसको काम करना है, मगर कुछ ऊपर के अधिकारी भ्रष्ट होने की वजह से वो काम नहीं कर पाते, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। और हमारा फर्ज है ऐसे ऑनेस्ट बीएमसी ऑफिसर्स, ऐसे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स के पीछे रहना और उनको मदद करना, ये हर सिटीजन का फर्ज है। सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी सेज you shall file a complaint with the appropriate authority as soon as, जिस वक्त आपको गलत काम जहां प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजुरी या लॉस होता है, ये आपका फर्ज बनता है
कि आप लोकल पुलिस स्टेशन या लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाके कंप्लेंट फाइल करें। फिर मैं आपको बताता हूं कि काफी जजमेंट्स है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप जो करप्ट लोग हैं वो एंटी नेशनल्स है, इनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुलिस का बारे में आता हूं मैं। हाँ, और एक ये कि आपके पास क्या क्या प्रोसीजर है। प्रोसिक्यूशन फॉर इलीगल एनक्रोचमेंट हॉकर्स MRTP 52 है, जिसके तहत बीएमसी एक्शन ले सकती है। अगर कंटिन्यूस एक्शन लेने के बावजूद भी नहीं सुनती है तो MMC एक्ट 516 के खिलाफ उनपे FIR रजिस्टर होना जरूरी है। IPC सेक्शन है 268, 269, 270, 431, 441, 268, 269, 270 ये हमको पब्लिक न्यूसेंस होता है और हमको अनायंस होता है करके ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो पुलिस को FIR रजिस्टर करना ही है, वो NC नहीं है। तो ये 5 जो है ये 268, 269, 270, 431, 441 IPC के सेक्शंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस को इसमें FIR रजिस्टर करना ही है, नहीं तो वो गुन्ना होता है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा, बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत आपको 102 और 115C, 102 और 115C इसके तहत पुलिस को और इनको 1200 रुपया फाइन लगा सकते हैं। अगर इन्होंने उन पे एक्शन भी नहीं लिया, FIR समझो नहीं किया, मगर सुबह शाम अगर 1200 भी फाइन करेंगे तो कितना दिन करेंगे। और ये हॉकर्स को अगर छपरा ही नहीं है और उनको बेस टेबल ही नहीं रख सकते, जिस दिन टेबल लगाया छपरा लगाया म्युनिसिपालिटी ने तोड़ के लेके गया तो कितना दिन नया छपरा लगाएंगे। आज हमारे डोंगरी में इसका फायदा हो गया है कि उनको छपरा लगाना बंद किया। हमारे बी वार्ड ने, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे बी वार्ड का कि उन्होंने पूरे छपरा को क्रेन लगा के तोड़ के, जितनी बार लगाया उतनी बार तोड़ा और वो अब मेनिस को अब काफी तरह से हम कंट्रोल कर पाए। ये अगर पूरे बम्बई में अगर हो जाए तो हमको जो हॉकर्स का तकलीफ है वो अपने आप कम हो जाए। अब मेरा हॉकर्स का जो बात है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं आता हूं पुलिस की तरफ। अब पुलिस की मैंडेटरी, ये सॉरी कितने घंटे अब पुलिस नॉर्मली कैसी बिहेव करती है। आप जाने के बाद आपका कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती है, आपको बोल FIR नहीं रजिस्टर करती है, या आपका कंप्लेंट लेती है और कहती है कि भाई इंक्वायरी चालू है। अरे भाई, इंक्वायरी करने का आपको अधिकार ही नहीं है तो आप इंक्वायरी कैसे करते हो। इंक्वायरी सिर्फ कोर्ट को करने का अधिकार है। आप ये सेक्शन लिख लीजिए 2G CRPC सेक्शन 2G, उसमें इंक्वायरी करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। मगर ललिता कुमारी जजमेंट ने पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार दिया, मगर ये इंक्वायरी सिर्फ 7 दिन के लिए। और इस इंक्वायरी क्या चीज है, आप ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इंक्वायरी क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, और हमको बेवकूफ बनाया जाता है, हमको भगाया जाता है। इंक्वायरी वो होता है जो पुलिस FIR के पहले करती है, और इन्वेस्टिगेशन वो होता है जो पुलिस FIR रजिस्टर करने के बाद होती है। ये दोनों में ये फर्क होता है। और इंक्वायरी करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, DCP को नहीं है, पुलिस के किसी माँ बाप को नहीं। आपको जो कोर्ट ने इंक्वायरी का अधिकार दिया है वो सिर्फ ये है कि आपने जो कंप्लेंट दिया है वो कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखता है कि नहीं। पुलिस को ये कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सच है कि झूठ है उसकी जांच करे। इंक्वायरी में कंप्लेंट सच है कि झूठ है इसकी जांच करने का पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है। किसी भी विटनेस को, एक्यूज को बुलाने का ये पुलिस को किसी भी तरह से अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि जब भी पुलिस आपको इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं तो वो लेटर पे देखिए कोई भी CRPC सेक्शन नहीं होता है। पुलिस को हर एक्ट, उसकी हर स्टेप वो CRPC के साथ ही होना चाहिए। कोई भी एक्ट वो अपने मनमानी से नहीं कर सकते। तो अगर आपको नोटिस आती है इंक्वायरी किया और उसके ऊपर CRPC सेक्शन नहीं है तो ये समझो कि यूएस पुलिस को वो अधिकार नहीं है आपको बुलाने का।
मगर फिर भी आप उनको बेइज्जत नहीं करना है, आप उनको आदर करना है, क्योंकि उनमें से जो अच्छे अधिकारी भी है वो दबाव में काम करते हैं। उनके ऊपर जो कोई ऑफिसर्स करप्ट होता है, वो उनको कभी कभी गलत काम करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, और उनका पेट पानी होने की वजह से कभी कभी उनको गलत काम करना पड़ता है। इसीलिए आप हर पुलिस ऑफिसर या हर बीएमसी ऑफिसर करप्ट है उनके तरफ गुस्से से या ग्रहण नजर से मत देखिए, उनको अपने बच्चे जैसे देखिए। हर पब्लिक सर्वेंट को अपने बच्चे जैसे देखिए, और उन्होंने अगर गलत किया तो उनको संभालिए, उनको बताइए, उनको कानून क्या है ये समझाइए, और उनको बताइए कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। और फिर भी अगर नहीं करते तो फिर जरूर उन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, मगर पहले ही टाइम पे उनको समझाए बगैर, उनको बताए बगैर उनको मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनको ऊपर से बहुत प्रेशर होता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। तो हमारा फर्ज होता है कि ऐसे लोगों को हमारा मदद खोना और उनके पीछे खड़ा रहना। उनको सिर्फ इतना ही बताना है कि आप फाइल नोटिंग में आपकी जो नोटिंग से वो परफेक्ट लिखिए, आपके फाइंडिंग्स उसको लिखिए, बाद में ऊपर वाले को जो करना है कीजिए, तो आप छूट जाएंगे। मगर आपने अगर ऊपर वाले को चाहिए वो लिखाई दिया तो आप कॉन्स्पिरेसी में आते हैं, आप संगनमत में आते हो, और इसीलिए आपके नोटिंग ये बहुत बड़ी चीज है, उसको अच्छी तरह से लिखिए। अब मैं ज्यादा से अभी हाँ, मैं ज्यादा सेक्शंस में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको टाइम देना है। और दूसरी बात यह है कि आप जब यूओडब्ल्यू में जाते हो तो यूओडब्ल्यू कहती है कि भाई ये एंटी करप्शन का बात है। जब आप एंटी करप्शन में जाते हो तो एंटी करप्शन कहती है यूओडब्ल्यू का बात है। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वो कहते हैं कि भाई ये फला फला पुलिस स्टेशन का बात है। ये उनको करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी को देखिए कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को उनके इन्वेस्टिगेशन को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। और उसके साथ पढ़िए सेक्शन 154, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो गया तो कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एंटी करप्शन में हो, चाहे ओडब्ल्यू में हो, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, उसको एफआईआर रजिस्टर करना ही है। उसके बाद में उसको वो जो जुरिडिक्शन है वहां भेजना है। मगर हमारे यहाँ हमको बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे एंटी करप्शन सबसे बड़ा बेवकूफ बनाती है हर इंसान को, हर एक कंप्लेंट को वो गलत तरीके से मरती है। इसीलिए एंटी करप्शन के हर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर हो सकता है, ईओडब्ल्यू के हर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इलीगल इंक्वायरी करते हैं, वो इलीगल दस्तावेज करते हैं, वो गैर तरीके से इंक्वायरी करके एक्यूज को बुलाते हैं, वो विटनेस को बुलाते हैं, और जिसके वजह से एक्यूज को समझ में आता है कि क्या करना है, और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की तरफ जाता है। वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सब बातें मैंने डीजी एंटी करप्शन को बताई है, मैंने एओडब्ल्यू के जॉइंट सीपी से बताई है, इनको लिखित दी है, मगर फिर भी ये गलत काम करते ही हैं। तो इसीलिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं इसीलिए आप सबको जागरूक करना चाहता हूं कि हर जो आदमी जो पुलिस स्टेशन में जाएगा, हर जो आदमी जो एडब्ल्यू में जाएगा, हर जो आदमी वो एंटी करप्शन में जाएगा, उसको 154 156 2 ये दो चीज दिमाग में रखना है। 154 कहता है एफआईआर रजिस्टर करना है, 156 2 कहता है कि अगर आपका जुरिडिक्शन नहीं हो तो भी एफआईआर रजिस्टर करो और बाद में उसको फॉरवर्ड करो। और इसके बाद में आपको ललिता कुमारी को याद रखना है। और सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5/2/2014 का सर्कुलर है, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर आपका जुरिडिक्शन नहीं है तो भी आप एफआईआर रजिस्टर करोगे। ये चार चीज आप ध्यान में रखिए। आपका एफआईआर वो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है नहीं करने का, या वो समझते हैं कि हम पब्लिक बेवकूफ है, वो आगे कुछ नहीं करेंगे। मगर ये चार डॉक्यूमेंट के जरिए से आप पुलिस पे एफआईआर करना चाहिए। और जिस दिन हम सिटीजन जागरूक होके अगर एफआईआर पुलिस पे करेंगे, म्युनिसिपैलिटी पे करेंगे, या जो गलत काम करने वाले पे करेंगे, मैं म्युनिसिपैलिटी और पुलिस पे करने का मतलब ये नहीं कि हर पुलिस हर म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर गलत है। 80% ऑफ देम आर हॉनेस्ट, दे वांट टू डू वर्क। आज मेरी एक्सपीरियंस है ये
कि मेरे साथ बहुत से अच्छे बीएमसी के ऑफिसर्स काम करते हैं, मेरे साथ अच्छे पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, मुझे मदद करते हैं, मुझे लॉ पॉइंट दिखाते हैं, मुझे सेक्शंस दिखाते हैं। मैं आज जो भी आपसे बातें करता हूँ, ये पुलिस ने ही मुझे समझाया है, पुलिस के अच्छे ऑफिसर्स ने मुझे समझाया है, म्युनिसिपैलिटी के अच्छे ऑफिसर्स ने समझाया है, माड़ा के अच्छे ऑफिसर्स ने मुझे समझाया है। ये मैं दोहराता इसलिए हूँ क्योंकि आप हर पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट को चोर, डकैत या रिश्वतखोर मत सोचिए। हमको हर को अच्छा समझना है और अच्छा समझ के उनसे अच्छा काम करवाना है। ये आइडिया रखिए, उन पे गुस्से से बात मत कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आप उनके रिस्पेक्ट उनको कुर्सी के दे रहे हैं, उनके आत्मा को दे रहे हैं। आपने अगर गलत काम किया तो हम एक्टिविस्ट आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपको रिस्पेक्ट से बात करना है। आप जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे वो सिर्फ पेन से करेंगे, आपके जबान से बिल्कुल नहीं करेंगे। जबान से आप सिर्फ उनकी आदर और सत्कार ही करोगे। पेन से, कानूनी तौर से आपको जितना भी जो करना है वो कीजिए। तो उसके बाद में आपको क्या करते हैं, फाइल पेंडिंग बिफोर डीसीपी करते हैं। तो आप सीधा डायरेक्ट जाने का डीसीपी की तरफ, बोलने का भाई आपकी हमारी फाइल क्यों पेंडिंग है, आपको बताओ। अब आप इतना प्रेशर किए, उसके बाद में वो एफआईआर रजिस्टर हो गया सब। फिर आपके इन्वेस्टिगेशन में उन लोग तकलीफ देंगे, 10-10 साल करेंगे। तो आप ये बॉम्बे में पुलिस मैनुअल का एक रेगुलेशन है 217 सबसेक्शन 5, उसमें ये लिखा है कि 6 महीने के अंदर उनको चार्जशीट फाइल करना है। अगर नहीं करना है तो उसको एक्सप्लेनेशन केस डायरी में लिखना है कि वो क्यों नहीं कर सकता है। वैसे ही 167 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी वो भी कहती है कि अगर आपका 2 महीने में चार्जशीट फाइल नहीं होता है फॉर ऑफेंस जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है या 10 साल के नीचे है और 10 साल के ऊपर है, तो आपको 3 महीने में करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज्यादा में ज्यादा 2 महीने में करना है, और जहां 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो वो 3 महीने में करना है। मगर आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। या मेरे ये एक्सपीरियंस है कि एओडब्ल्यू और एंटी करप्शन में काफी ऑफिसर्स मुझे साथ देना चाहते थे, मगर वरिष्ठ अधिकारी उनको नहीं करते थे। वो जब नोटिंग बनाते थे, मैं ऑफिशियली मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर ये मेरे को उन लोगों ने बताया, इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं। मगर ये फैक्ट है, एक्सपीरियंस, हर चीज हम प्रूव नहीं कर पाते हैं कि जब वो सही नोटिंग करते हैं तो उनके रीडर उनको बुलाते हैं, बोलते हैं सर ने बोला है कि इसको उल्टा करो। तो हमारे ही सीनियर ऑफिसर्स जूनियर ऑफिसर्स के काम में, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी ये सेक्शन लगना चाहिए कि क्योंकि एफआईआर रजिस्टर करना ये उस ऑफिसर का काम है और सीनियर पीआई का काम है। उसमें डीसीपी और उसके वरिष्ठ अधिकारी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, और अगर दखल अंदाजी करते हैं दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। इसीलिए ये नए पुलिस ऑफिसर्स को मेरा कहना है कि आप ये सेक्शन के खिलाफ, उनके खिलाफ आप केस भी कर सकते हो और कीजिए। क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी ओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के हैं, इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को एक पोस्टमैन और एक क्लार्क बना के रखे हैं। ये खुद के जरिए से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं। इनको बताया जाता है कि आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करो, इनको बताया जाता है आप इन्वेस्टिगेशन को बंद करो, और जो अगर अच्छा ऑफिसर नहीं सुनता है तो इनकी बदली की जाती है। इसके काफी इंस्टेंसेस है मेरे पास। अगर उसको बदली नहीं किया जाता है तो उनके पर इतने केसेस दिए जाते हैं कि वो संभाल नहीं पाते। ये तरीका है हमारे वरिष्ठ जो भ्रष्ट अधिकारी है, ये ऐसे तरीके से जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को तकलीफ देते हैं। ये तरीका हमको डीजी से, हमारे एडिशनल डीजी से हमको जाके डिस्कस करना है। हम लोग को पब्लिक अवेकनिंग करना है। हम पब्लिक फोन करेंगे इन लोगों को और बताएंगे हमको मीटिंग चाहिए, आप ऐसे क्यों करते हैं, आप हर चीज कानून के खिलाफ क्यों करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब मैं आपको आता हूं कि हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो किस तरह से हमको बेवकूफ बनाते, करप्ट लोगों को बचाने का वो दिखाते हैं कि अच्छे लोगों को बचाने का। देखिए आप ये देखिए, उनका सेंटेंस क्या है कि अच्छे पब्लिक सर्वेंट को बचाने के लिए हमने ये अमेंडमेंट लाया है। मगर फैक्चुअली क्या है कि भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए इन्होंने किया। अब ये सैंक्शन की वजह से क्या होता है, जो अच्छा अधिकारी है और जो वरिष्ठों का नहीं सुनता है उसके लिए सैंक्शन इमीडिएटली दिया जाता है।
और जो भ्रष्ट है और जो वरिष्ठ का अधिकारी का सुन के गलत काम करता है उसके लिए सैंक्शन ही नहीं दिया जाता। इसलिए हम हमारे जो माध्यम में जो आज एडवोकेट्स है या एक्टिविस्ट है उनसे कहते हैं कि वी नीड टू चैलेंज द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 156(3) एंड 190 और 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसके तरीके से आज इन्वेस्टिगेशन ठप हो चुका है। गए 3 साल से 2015 से 2018 तक 11,500 कंप्लेंट्स एंटी करप्शन के पास आए हुए हैं और 5 एफआईआर सिर्फ हुआ है। तो इतने किधर गए? इनके पास इनका हिसाब भी नहीं है कि भाई 11,000 एफआईआर कंप्लेंट्स के आपने क्या किया, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये हमारे साथ गद्दारी नहीं है, ये इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है, ये पब्लिक के साथ धोखा नहीं है, तो ये फिर क्या है? ये हमारे अगर एंटी करप्शन बताएंगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, आपका पैर भी पड़ने के लिए तैयार हूं। वैसे ही म्युनिसिपालिटी में भी ऐसा होता है, कंप्लेंट्स का उन्होंने रजिस्टर नहीं मेंटेन किया है, ये नहीं, तो हर आदमी अभी आपको जो मैंने सर्कुलर दिया है उसके तरह से आरटीआई फाइल करने का कि आपने ये सेक्शन की तरफ क्या कंप्लेंट्स किए हैं, उसके रजिस्टर्स की कॉपी हमको चाहिए, हमको उसका इंस्पेक्शन चाहिए। और जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है आपको बताया जाता है कि भाई एसआरए को दे दिया, फॉरवर्ड किया, भाई फला फला को फॉरवर्ड किया, ये सब बहाना है, ये फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मैंने जो एसआरए को फॉरवर्ड किया उसके आरटीआई पूछिए तो एसआरए के पास उसके इनवर्ड रजिस्टर ही नहीं है, आज 4 साल से किए हुए उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो हमको ये बेवकूफ बना रहे हैं। एसआरए को ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का ही अधिकार है। मैंने उनको पूछा भाई क्रिमिनल ऑफेंस है, आपने किस तरह से इसको एक्सेप्ट किया है, तो उनके पास जवाब नहीं, बोलते ये यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, और जबरदस्ती उत्तर नहीं देते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमको करना है। एसआरए, माडा, बीएमसी ये करप्शन को मैक्सिमम प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और ये जो करप्ट लोग हैं इनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते या डरते हैं, उसके खिलाफ भी हमको आवाज उठाना है। अब जो रिपोर्ट फाइल करते हैं, गलत रिपोर्ट फाइल करते हैं, तो उसके लिए आपको आप लोग क्या करते हो कि सी क्लासिफिकेशन करो, और उसको कोर्ट बोलते हैं सी क्लासिफिकेशन कैंसिल करो, वापस फर्दर रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए दो, उसके लिए तो करो ही, मगर उसके बावजूद उनको ये दिखाना है, कोर्ट के पास ये मांग करना है कि दे हैव प्लेड फ्रॉड ऑन द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को धोखाधड़ी की है, इसलिए 199 पे उस पे केस होना चाहिए। फिर उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं कोर्ट के सामने, तो उसके लिए उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और इनकी कंप्लेंट कोर्ट ने डीजी और सीपी के पास करना चाहिए कि इनके ऊपर ये झूठा डॉक्यूमेंट देने की वजह से उन पे डिपार्टमेंटल एक्शन और डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ये चीज करने के लिए मत भूलिए, आप सी क्लासिफिकेशन को चैलेंज करेंगे, आप जीत जाओगे और खुशी से बाहर आओगे। आपका सी क्लासिफिकेशन का इन्वेस्टिगेशन फर्दर होने के बाद भी वापस वो झूठा रिपोर्ट देने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे आपको ये बताना चाहता हूं कि बीएमसी का अब गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि चार्जशीट फाइल करने के पहले एक कमेटी के पास जाना चाहिए, मॉनिटरिंग कमेटी उसको कहते हैं, और वो मॉनिटरिंग कमेटी वो चार्जशीट को देखेगी तो उसका भी रिपोर्ट लीजिए। क्यों? वो अगर रिपोर्ट ले लिया तो जिसने मॉनिटरिंग कमेटी ने भी अगर झूठ किया है उसको भी 166 167 में लीजिए आप, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एक ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, ये एक चेन है और हमको इस चेन को तोड़ना है। और इस चेन को तोड़ने के लिए हमको इसमें जो भी इन्वॉल्व है, सीनियर पीआई होगा, एसीपी होगा, डीसीपी होगा और आईओ, ये चारों लोगों को हमको 166 के तहत प्रोसिक्यूशन करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो हमारी बंबई, हमारा भारत कभी भी सुधर नहीं सकता है। अगर ये देश को सुधारना है तो पुलिस को सही तरह से काम करना ही है, और पुलिस ही हमको अच्छी तरह से संभाल सकती है। अब मेरा ये पुलिस का जो बात है वो खत्म हो गई है। अब मैं आपके पास आता हूं कि हमको गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना है, और मेरी ये आप सब एक्टिविस्ट से और जो हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हैं उनके पास ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमको ये चीज के लिए मांग करनी है, ये चीज के लिए लड़ना है, और ये चीज के लिए हमको काम करना है। पहली बात यह है कि पॉलिटिक्स इज सोशल वर्क, तो आप उनको हैवी सैलरी पर सब पेंशन कैसे दिया जाता है, उसके लिए हमको सही तरह से आवाज उठाना है। और आप उनको पगार तो, अरे आप कितना फंड लगाने का है, किधर फंड लगाने का, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने का, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर डिसाइड करेंगे।
वो सबस्टैंडर्ड वर्क है, हमारी जवाबदारी नहीं। ब्रिज गिर गया, हमारी जवाबदारी नहीं। इलीगल कंस्ट्रक्शन, हमारी जवाबदारी नहीं। अरे भाई, फिर आपको इतना सैलरी पर्स काय के लिए देना? सोशल वर्क के नाम पे आप हमारे इतने टैक्स पेयर्स के पैसे जो खा रहे हैं, तो फुकट में खा रहे हैं, तो आप छोड़ दो। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमको कोर्ट या लेजिस्लेशन के पास ये मांग करना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस, रास्ता खराब है, इलीगल फ्लावर बेड्स बनाते हैं, रास्ते पे रीडिंग रूम्स बनाते हैं, इसकी जवाबदारी में कॉर्पोरेट और आमदार खासदार को पकड़ना ही है। इसके लिए हमको चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। फिर जब इलेक्शन आता है तो हमको ये लेजिस्लेशन चाहिए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हमको एफिडेविट देंगे, हमारे एरिया के जो सिटीजन्स हैं उनके एफिडेविट देंगे कि अगले 5 साल में वो क्या काम करने वाले हैं। हमको बेवकूफ बनाते, हमारे हमको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम बाकी सिवा कुछ नहीं दिखता है। हमको इन्होंने कभी घर के बारे में बोला, हमको कभी खाने के सस्ता खाने के बारे में बोला, हमको ओपन स्पेस के बारे में बोला, हमको एजुकेशन के बारे में बोला। हमको इसके आगे जो भी हमारे पास भीख मांगने आएगा वोट, उसको ये बोलना है हमने हमारा सस्ते घर के लिए क्या किया है, हमारा रास्ता और फुटपाथ के लिए क्या किया है। हमको मोहल्ला क्लिनिक, हमको हर मोहल्ले पे डॉक्टर चाहिए फ्री में, उसके लिए क्या किया है, एजुकेशन के लिए क्या किया है, कॉलेज के लिए क्या किया, हॉस्पिटल के लिए क्या किया, ये हम ठोक के पूछना है। आप हमको, उन लोग आने के बाद आप उसके पैर पड़ते हो, उसको भगवान समझते हो, भगवान नहीं है, वो हमारा बच्चा है। और बच्चा जहां गलत है उसको ठोकना हमारा काम है। इसलिए आज से आप उनके माँ बाप बन जाओ। वो हमारे माँ बाप नहीं है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, हमारे नौकर है, हम उनके माँ बाप है। और हम उनको पूछेंगे कि इसके बारे में क्या क्या, उसको जवाब देना है। और हम फोर्स करेंगे कि आप हमको इसके बारे में एफिडेविट दीजिए कि आपने 5 साल में क्या करना है। हाल ही में अभी दिल्ली में एक हाईकोर्ट ने जजमेंट दी है कि चीफ मिनिस्टर ने जो डिक्लेरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, दैट बिकम्स अ लॉ एंड ही विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो हम भी जो आपने आश्वासन दिया है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ 199 झूठा दस्तावेज बना के, आपने झूठा एफिडेविट दिया करके आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। जिसके लिए हमको जोर पकड़ना है, वो गली से करना है। प्लीज मेरे आपसे सभी से विनती है कि इसको जोर पकड़िए। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पुलिस ये सही नहीं होगे, तब तक आप कितना भी दिमाग फोड़ो, आप पत्थर के साथ लड़ रहे हो। अब हम इस पत्थर को थेम थेम, जैसे बोलते हैं थेम थेम गिर के पत्थर को हम तोड़ देंगे, वैसा हर आदमी, ये पॉलिटिशियंस को हम मार के, मतलब उनको पास अच्छे काम करने का सब एप्लीकेशंस करके, उन पे पर प्रेशर करके हम उनसे अच्छे काम कराएंगे। या आप सभी को करना। तीसरी बात हमको करना है कि हर ऑफिसर के कैबिन में हमको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर इंटरनेशनल कोर्ट्स पे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो आप अगर नहीं डरते हो, सच्चा, आप अगर सच्चा काम करते हो, आप जुटाई से नहीं डरते हो, तो फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से, आप मिनिस्टर के पास जाओ, नहीं नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने का, आप डीसी के पास जाओ, अरे वीडियो रिकॉर्ड, अरे आप डरते क्यों? आप डरते हो, इसका मतलब आप गलत काम करते हो। अगर आपको हमने अपॉइंट गलत काम करने के लिए दिया है, नहीं दिया है, तो हमको ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए करना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे स्कूल के कैरिकुलम में हमको आरटीआई सब्जेक्ट लाना चाहिए। आज हमारे बच्चे को आरटीआई पता नहीं है, मगर जिस दिन हमारा 8वीं 9वीं 10वीं में आरटीआई के बारे में पता चलेगा तो वो बाहर आते ही चालू करेगा, ये रास्ता गंदा है, चलो आरटीआई डालो, चलो ये करो। और एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बॉम्बे, अभी कोल्हापुर वाला तो कोल्हापुर, बॉम्बे वाला बॉम्बे, तो उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में गार्बेज सिस्टम क्या है, सीवरेज सिस्टम क्या है, पानी का सिस्टम क्या है, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, बेसिक। उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, मगर बेसिक। आप जो बाकी अनवांटेड सब्जेक्ट है उसको कम करो, मगर ये जो सब्जेक्ट है आगे उसको जिंदगी में काम आएगा, वैसे सब्जेक्ट उनको लेना है।